everyone, this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to discuss some study strategy related to the exam IPAT. IPAT stands for the Industrial Proficiency Aptitude Test, which is conducted by the CII. So CII IPAT is the technical recruitment process and the protocol for the Indian industries. Under this, the online exam will be conducted to recruit the top engineer for Indian industries. The scorecard of the successful candidate in this exam will be shared with the Indian industries, which will then recruit candidate on the basis of their scores and the rank. So CII is the aiming to set a benchmark to the assess industrial aptitude and proficiency of engineering graduate across the India. So if we talk about the benefits of the benefits related to the IPAT exam, is that the scorecard is valid for the 3 years, not for 1 year or 2 years. It is totally valid for the 3 years. Okay, and the engineers at any age are eligible for the IPAT exam. Third benefit is that the IPAT is not a placement service. It is not a placement service. It means it's an exam conducted by the CII on the behalf of Indian Institute to recruit the technical talents basically. So live database of the successful candidate will be shared with the Indian industries to recruit based upon the grade, scores and ranking. And the CII IPAT certificate will be great help for the candidate to be recognized by the Indian Institute to get suitable job opportunity. So there is no limitation on the IPAT exam attempts. The one most important benefits of the IPAT exam is there is no number of attempts are defined here. So you have to give, if you have not qualified this year, you can apply for the another year. So there is no limitation for the exam attempting. And the most important, another most important point is that there is no reservation or quota is valid in this exam, and the experienced candidate may also be appear in the IPAT exam. So there is no compulsory that you have not have any gap between the graduation and another streams. Okay, the candidates can apply for this session. The candidate can apply for only one discipline at one time. ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि एक डिसिप्लिन में आप एक ही टाइम पे अपेयर कर सकते हैं. ठीक है, एलिजिबिलिटी, अगर आपने ये फॉर्म भरी है तो आपको एलिजिबिलिटी पता होगी कि इसमें BA BTech अवेलेबल है, 4 ईयर कोर्स आफ्टर 10+2, और साथ ही में BA और BTech जो 3 ईयर कोर्स आफ्टर BSc और डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा जो किया जाता है. BArc और प्रोफेशनल सोसाइटी एग्जामिनेशन लाइक BE BTech ये सारे रिकॉग्नाइज्ड है. ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स और PG इंजीनियर स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी अप्लाई. Now we talk about the the process and protocols. What are the process and protocols of this exam? So the first protocol process is that which is already you have done that because this form is already filled. Now अब क्या एग्ज़ाम का टाइम आ गया. तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप था, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था, जो कि आप ऑलरेडी एनरोल हो चुके होंगे. सेकेंड इनका प्रोसेस था ऑनलाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस. तो इसमें क्या था, ये इनके पास जो है फ्री एसेस है, इनिशियल असाइनमेंट और ड्राइव स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट को एनालाइज करते हैं, और सारे वीडियोस और स्टडी नोट्स इनके चैनल पे अवेलेबल है, इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि इन द मंथ ऑफ फरवरी से अवेलेबल्स थे.
ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसका प्रोसेस था ऑनलाइन लर्निंग एंड अपस्किल्स। ये भी जो फर्स्ट और सेकंड जो आपका स्टेप है, ये आपको आपके इसके वेबसाइट पे इससे रिलेटेड मॉक टेस्ट, डिस्कशन, टेक्निकल वीडियोस और रेफरेंस बुक अवेलेबल हैं आपकी वेबसाइट्स पे। नेक्स्ट जो इसका प्रोटोकॉल और प्रोसेस है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम एंड सर्टिफिकेशंस। तो बेसिकली ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, आपको एडमिट कार्ड एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलेगा। उस एडमिट कार्ड के साथ आप सेंटर पे जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो सेंटर में आप जाएंगे और आपको क्वालिफाई हो जाते हैं तो एक पर्टिकुलर स्कोर कार्ड्स मिलेगा। नेक्स्ट जो है ऑनलाइन जॉब बोर्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें बेसिकली इन दिस पार्ट क्या होता है कि आपके पास कि qualified candidate will get access IPAC job boards where all the suitable opportunities from the corporate will be available. So the candidate can apply to appear for the GDPI rounds directly from if you have the मतलब कि आपके पास IPAC स्कोर कार्ड है तो आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि इस इनके बोर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है, इंक्लूड है, उसके जो सेकंड प्रोसेस होता है GDPI राउंड्स होते हैं उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके प्रोसेस थे। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की। तो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर जो था वो 3 आवर्स का ये एग्ज़ाम है। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट है, दैट इज़ हाफ मार्क्स। ठीक है ना, मतलब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, अगर आपने गलत कर दिया तो आपके हाफ मार्क्स कट जाएंगे। और यहाँ पे MCQ टाइप्स और न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे एग्ज़ाम में। तो ये एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, किस पैटर्न में हमको सिलेबस मिलेगा। तो ये जो एग्ज़ाम है IPAT वो 3 सेक्शन में, 3 पार्ट में इसका सिलेबस है। दैट इज़ फर्स्ट पार्ट सेक्शन इज़ दैट कॉग्निटिव एप्टीट्यूड्स है। उसमें 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के हो जाएंगे। उसमें आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एनालिटिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश कम्युनिकेशन। तो ये 4 जो पार्ट है कॉग्निटिव एबिलिटी में आपके पास अवेलेबल है, जो 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जो है प्रोफेशनल एबिलिटी का है, जिसमें आपको इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के, जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हेल्थ सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल लॉ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स एंड फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स और लीगल कॉन्ट्रैक्ट एंड एब्रीविएशन। तो बेसिकली अगर हम गेट एग्ज़ाम देते हैं तो गेट इज़ एग्ज़ाम फॉर द रिसर्च, और आप इंडस्ट्री PSUs में भी गेट के थ्रू जाते हैं। लेकिन ये बेसिकली एग्ज़ाम है वो डिज़ाइन किया गया है इंडस्ट्री पर्पस से रिलेटेड। इसलिए जो पहले के 2 पार्ट हैं, जो 2 सिलेबस के जो पार्ट हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, जो ये आपकी इंडस्ट्रियल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे सेकंड 1 तो बहुत ही ज़्यादा, जिसमें आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्री में क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंटल लॉ क्या होती है, क्योंकि जो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो कुछ ना कुछ वो हार्मफुल इफ़ेक्ट ज़रूर डालती है इन्वायरमेंट के ऊपर। इसीलिए हमें इन्वायरमेंटल लॉस हमें नोन होने चाहिए, और फाइनेंस, अकाउंटिंग, लीगल्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इनकी बेसिक पता होनी चाहिए। इसलिए 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस इस सेक्शन में हैं। ठीक है, और कॉग्निटिव एबिलिटी तो हर एग्ज़ाम में आपके आता ही है, चाहे आप गेट का एग्ज़ाम दे लीजिए या तो आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे लीजिए, ये सब सारी चीज़ों में आप मिलता है। जो थर्ड पार्ट है वो हमारा टेक्निकल पार्ट होता है। टेक्निकल पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है इस सेक्शन को, दैट इज़ टेक्निकल एबिलिटी पार्ट A एंड टेक्निकल एबिलिटी पार्ट B। ठीक है, इसमें टेक्निकल एबिलिटी पार्ट A में जो है 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, जो कि होगा बेस्ड ऑन दी 10th टू 12th लेवल की फ़िज़िक्स केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री 10th to 12th की, इसमें थोड़ा सा इसका नॉलेज होना चाहिए आपके पास। ठीक है, और जो 4th सेक्शन होगा, जो मतलब
थर्ड पार्ट का सेकंड सेक्शन होगा वो आपकी टोटली आपकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग होगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है। उसमें 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया किस टाइप का आपके पास जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा और किस तरीके से सिलेबस को इन्होंने डिवाइड किया गया है। अब ये आईपैड की टाइमलाइंस जो थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से काफ़ी डेट्स निकल गए हैं। जैसे यहाँ पे जनवरी में आपको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे, ठीक है, ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए जो स्ट्रेंथ वीकनिंग एनालिसिस लर्निंग एंड अपस्किलिंग फैसिलिटीज़ जो वेबसाइट पे अवेलेबल हुई थी वो आपको फरवरी में ही हो गई थी, ठीक है। तो ये जो डेट्स थे वो कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से डिले भी हो गई थी। तो ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी जनरेट हो जाएगा, आपको मेल के थ्रू ये पूरी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, ठीक है। अगस्त में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है इन्होंने अगस्त में टेंटेटिव डेट नहीं निकाली है, लेकिन टेंटेटिव मंथ इन्होंने बुलाया है अगस्त। और इन्होंने ये भी बताया कि कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। और जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट रिज़ल्ट और स्कोर कार्ड जो अवेलेबल होगा वो सितंबर 2020 में होगा। और जॉब बोर्ड के ऑफ CII में आप अप्लाई करने के लिए एसेस कर सकते हैं कौन से सितंबर 2020 में ही, ठीक है। तो ये जो अभी हमारा कौन सा मंथ चल रहा है, हमारा मंथ चल रहा है जून। तो जून हमारे पास अभी पूरा जून है, जुलाई है, अगस्त है। मे भी ये कोविड की वजह से शिफ्ट होकर सितंबर में एग्ज़ाम होगा। मतलब अभी भी हमारे पास ढाई या 3 से ढाई महीने अवेलेबल है, तो हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम जो है CII के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं ताकि हम सिलेबस को डिटेल में दे सकें और आपको मैं मेन स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी है वो बता सकूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के बारे में, जिसमें ये जो रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी इस चीज़ में सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 1 के लिए आप पर्टिकुलरली, क्योंकि ये कितने मार्क्स का है, 20 क्वेश्चन आने हैं 20 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स बहुत ही मायने रखते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर आपने गेट के लिए प्रिपरेशन किया होगा पहले, अगर आपने गेट के लिए प्रिपरेशन किया या कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया होगा, तो एप्टीट्यूड तो आपने पढ़ी ही होगी। तो एप्टीट्यूड के लिए सिर्फ आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो आप कोई भी कोचिंग की एप्टीट्यूड की जो बुकलेट्स आती हैं या कोई भी एप्टीट्यूड की जो बुक्स आती हैं उसको आप रेफ़र करके, सिर्फ एक बुक को रेफ़र करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो ज़्यादा ऑनलाइन या कोई भी 2-3 बुक फॉलो करने से फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें पॉइंट टू पॉइंट प्रिपरेशन करनी है, स्मार्टली वर्क करना है। इसीलिए तो हम क्या करेंगे कि एक बुक को लेके, हम स्टैंडर्ड बुक को लेके हम उसको सॉल्व करके इस सेक्शन को पढ़ सकते हैं। तो जैसे मेड इजी का मैंने, क्योंकि मेड इजी का मेरे लिए नोन है, इसलिए मैं आपको रेफ़र करूँगी कि मेड इजी के जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग की जो बुकलेट आती है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, और हो सकेगा तो मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उसको देख सकते हैं इस सेक्शन के लिए, ठीक है। सेकेंड आ जाता है प्रोफेशनल एबिलिटी के लिए। प्रोफेशनल एबिलिटी के लिए अगर आपने, जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये आपके लिए नए होंगे। हेल्थ और सेफ्टी, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग से हैं या मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग से हैं, तो हेल्थ और सेफ्टी ऑलरेडी इसमें हमारे ब्रांच में जो होता है सब्जेक्ट है, तो सबसे सब्जेक्ट अवेलेबल होता है। तो ये हेल्थ और सेफ्टी वाला जो है ये सेक्शन तो पूरा ऑलरेडी हमारे बीटेक में कवर कर चुका है, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल लॉज जो हैं, या आप कोई भी IAS की बुक कंसीडर करें, तो उसमें आपको बेसिक ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट की फंक्शंस, ये बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको बताया होगा पॉइंट टू पॉइंट। तो ज़्यादा भी इसको डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एथिक्स, ये सारी चीज़ें आपको IAS और सिविल सर्विसेज की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज या IAS की बुक को रेफ़र करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड सेक्शन पे, टेक्निकल एबिलिटी पे। टेक्निकल एबिलिटी में मैंने आपको बताया कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री 10 to 12
इसमें कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो 10th और 12th की तो इतना तो आपको आता ही होगा कि 10th और 11th, 10th तक थी, 10th की तो बहुत सिंपल है, फिज़िक्स केमिस्ट्री, 11th की भी सिंपल है। 12th में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल्स बढ़ जाता है। इसके लिए आप कोई भी नीट, गेट, नीट और या जेई के एग्ज़ाम के वीडियोस देख सकते हैं, या मेरा आपको सजेशन ये है कि सिंपली आपको यहाँ पे सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि इंजीनियरिंग में ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको डीपली में पढ़ाई जाती है, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जाती है, तो आपको सिर्फ रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो रिवाइज़ करने के लिए सबसे बेस्ट है NCERT। अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो आप NCERT ईज़िली एक बार में पढ़ लेंगे। अगर आपका डिफरेंट बोर्ड रहा हो, तो स्टेट बोर्ड रहा हो, तो आप अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग रिस्पेक्टिवली अपने एक सिंपल एंड मतलब बेसिक बुक ले लें। रेफरेंस बुक तो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और क्योंकि उसमें बहुत डीप में दिया रहता है रेफरेंस बुक में, तो वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन है और 10 मार्क्स है, तो इसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें बेसिक ही पूछा जाएगा। तो आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि NCERT बुक को रेफ़र करें, ठीक है। NCERT बुक रेफ़र करेंगे। एंड थर्ड सेक्शन का B पार्ट जो है वो टेक्निकल पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे मेरी ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग, आपकी कुछ भी हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, सिविल हो सकती है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो सकती है, जो भी आपने चूज़ किया है। तो ये जो पूरा सिलेबस है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये पूरा का पूरा गेट से रिलेटेड है। इसी तरीके से फ्लूइड मैकेनिज्म एंड मैकेनिकल ऑपरेशन, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्रोसेस कंट्रोल, प्लांट एंड इकोनॉमिक्स, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड ड्राइंग एंड डायग्राम, ये सारी चीज़, ड्राइंग और डायग्राम को छोड़ के ये सारी चीज़ें गेट के सिलेबस में कवर होती है। तो अगर आपने गेट की प्रिपरेशन की है, तो जस्ट लास्ट ईयर के 25 क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर्स लगाइए, और क्योंकि अभी एग्ज़ाम हुआ था तो उसको रिवाइज़ करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। जस्ट आप अपने शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला बुक को रिवाइज़ करिए, और साथ में न्यूमेरिकल्स करिए, और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइए। मेरा लास्ट टिप ये है, क्योंकि ये हमने अपने सिलेबस को सारा कवर कर लिया। अब मेरा लास्ट टिप्स आपके लिए ये है, क्योंकि ये एग्ज़ाम फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है, फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, और ये अपनी वेबसाइट पे सैम्पल टेस्ट भी अवेलेबल करते हैं। तो सैम्पल टेस्ट होने की वजह से क्या है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, तो इन्होंने जितने भी टेस्ट सीरीज़ बनाई होंगी, तो मे बी, ये मेरा ओपिनियन है कि मे बी उसमें से 10 to 20% तो कुछ तो कॉमन क्वेश्चंस होने ही चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंपलसरी हैं, लेकिन उससे रिजेंबल होते हुए क्वेश्चंस आएंगे ही। तो साथ में लास्ट ईयर के 25 ईयर्स के क्वेश्चन लगाने के साथ ही आप एक बार वेबसाइट पे विज़िट करिए और इनकी टेस्ट सीरीज़ देखिए, आप देख सकते हैं। तो इसमें आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि किस तरीके से आपको इसको तैयारी करने की ज़रूरत है। और तैयारी के लिए जैसे आपके पास 2 या 3 मंथ बचे हैं, अगर क्योंकि अभी डेट नहीं आई है, तो हम 2 से 2.5 मंथ देख लेते हैं, सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास बचे हैं। तो आपको एक सेक्शन को पर्टिकुलर एक सेक्शन को नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो है सेक्शनल कट ऑफ इम्पॉर्टेंट है। गेट की तरह नहीं है कि आप एप्टीट्यूड में आपके कम आए हैं और टेक्निकल सेक्शन में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो भी आपका ओवरऑल अच्छा परसेंटाइल बन गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर सेक्शन में आपको पर्टिकुलर कट ऑफ निकालना ही होगा। तो इस वजह से आपको सारी चीज़ें एक साथ पढ़नी है। मतलब डेली का आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे सेक्शन ए से सेक्शन 1 से मुझे को 1 घंटे देना है, या मुझे इतना टॉपिक करना है, एक टॉपिक करना है। इसी तरीके सेक्शन बी से सेक्शन 3 का ए से, और इस तरीके से। तो अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए भी। और अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप ग्रुप स्टडी के साथ पढ़ाई करेंगे तो एक दूसरे को समझाने से ज़्यादा अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होते हैं और जल्दी कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू वांट टू नो more about myself, that is
that is I work as an assistant professor in Technical University. I have done BTech MTech in Chemical Engineering from Aligarh Muslim University. I have more than 5-year teaching and career counseling experience, and I have published 1 book and 4 research papers. So my mission is to develop the platform where you get center of excellence for the technical and professional education in one place. So basically मेरा मोटो जो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियरिंग से हूँ, लेकिन मैं जो केमिकल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं वो सिविल और मैकेनिकल से काफ़ी रिजेंबल करते हैं, मतलब 3-4 सब्जेक्ट तो कॉमन ही हो जाते हैं। तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज एक साथ मिले, साथ में आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप हो और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। तो इसलिए मेरा ये ड्रीम है कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं। मैं अभी इनिशियल स्टेज पे हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोग की हेल्प से, आपके सजेशन से मैं ज़रूर अपना ये मिशन कंप्लीट कर पाऊँगी। सो मेरी वीडियोस जो होती है, अगर मैं टाइमिंग की बात बताऊँ तो हर मंडे टू सैटरडे मेरी वीडियोस आपको 8 o'clock अवेलेबल होगी। साथ में कभी कभी इवनिंग में भी आपको एक्स्ट्रा बोनस में वीडियोस मिल भी जा सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर माई साइड टुडेज़ माई सेल्फ, दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you like it, and please don't forget to subscribe, share and like. Thank you and have a nice day.